Hello and welcome to EduRev. My name is Harshmeet Singh and I've been teaching Indian polity and history to civil services aspirants for more than 5 years now. This is the part 3 of the History NCERT Class 6 Summarized Version series, in which I'm trying to cover the Class 6 History NCERT in whole in just 6 very short videos. As you know, at the end of the video, I will also be asking you a couple of questions from the parts that we have discussed so that you can prepare entirely the chapter from these particular videos as well. As I said, this is part 3 of this video series. I hope you have earlier seen the 2 parts that we have already done. Now, in this part, we will start with what the ancient books and the burials tell us about the people living in India earlier. Now, when you talk about ancient books or ancient books की बात करते हो, the very first book that comes to our mind are the Vedas. India is said to be the home of the Vedas, of 4 great compilation of books that talk to us about a lot of things about how people in India used to live. 4 Vedas हैं in total, and all of you would know about this. These are the Rig Ved, Sam Ved, Yajur Ved, and the Atharva Ved. Out of these, the oldest one was the Rig Ved, which was composed by the Aryans about 3500 years ago. Now, Rig Ved is in the form of thousands of hymns. So, there are no written paragraphs, these are just hymns. Also, when you say Rig Ved, the earliest Rig Ved, these are not in written form. These are just oral information given from one generation to the other generation. So, if a priest knows the Rig Ved, he will just recite the Rig Ved. Other people around him will listen to him, and that is how they will also learn. The hymns in the Rig Ved were called the Sukt, that is, which means well said. ये hymns थी क्या? These hymns were mainly praises of gods and goddesses. कौन कौन से god के बारे में बात है ऋग वेद में? Now this is important because हर generation के साथ, after every generation, in every time period, the number of gods or the kind of gods will keep on changing. ऋग वेद में, for example, the important gods were Agni, Indra, Som. Apart from that, for example, Harappa's के time पे, it was Pashupati who was the god that was followed by most people. In the later Vedic age, you will see other gods will emerge. So different types of gods were worshipped by people at different points of time in the history. अब ये बनाई किसने थी hymns? These hymns were composed by sages or rishis as you call them. Importantly, these are not all the male rishis. There were some females also who played a part in the composition of the Rig Ved. Most of these hymns were composed, taught and learned by men. Remember, most, not all, because a few were composed by women also. Now, Rig Ved की language क्या थी? It is Sanskrit, but not today's Sanskrit. It was Vedic Sanskrit. So, उस time की जो Vedic Sanskrit थी, it is not the same as today's Sanskrit. It's an older version. You can't assume that it is the same as today. There are many prayers in Rig Ved for the cattle. Cattle क्योंकि उस time का सबसे ज़्यादा important position हुआ करता था. For children, for praying, for having a son, and for horses also. Rig Ved also tells us कि most men took part in the war. कोई permanent army नहीं हुआ करती जैसे कि आज है. There was no permanent army. For example, कभी war है and the community is attacked from outside, every man was asked to leave his or her work and come and fight in the war. So army नहीं हुआ करती थी, but most of the people used to take part. Most of the men used to take part in matters of war and peace, and discussions were held. Now, लोगों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है. Different kind of words have been used for different types of people. These depend upon the work that they do. क्या काम करते हैं? For example, अभी भी आप देखो कई लोग जो काम करते हैं उनके हिसाब से on the basis of that you try to name these people. The language that they speak, for example, कोई पंजाबी language बोलता है, बोलते हो तो पंजाबी है. कोई बंगाली लैंग्वेज बोलता है या बंगाल में रहता है, यू टेल दैट दिस पर्सन इज अ बंगाली. गुजराती और डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स आर अटैच्ड टू पीपल डिपेंडिंग ऑन वो क्या बोलते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कस्टम है उनका, एटसेट्रा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क. उनके काम के बेसिस पे भी लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया. फॉर एग्जाम्पल, प्रीस्ट. प्रीस्ट कौन होंगे? प्रीस्ट जो लोगों को बताएंगे भगवान की पूजा अर्चना कैसे करनी है, हाउ टू कम क्लोजर टू गॉड, हाउ टू डू रिचुअल्स एटसेट्रा. These were called Brahmins.
who performed various rituals, and the other were the rajas who used to rule. They did not have any capital cities, so capital city नहीं थी. पहले कोई टैक्स वगैरह भी नहीं लिया जाता था. यूजुअली ऐसा नहीं होता था कि कोई राजा की डेथ हो गई है तो सन और द बेटा विल बिकम राजा, ऐसा नहीं हुआ करता था. पीपल यूज टू सिलेक्ट कि भाई हमारा अगला राजा कौन होगा. तो हेरिडिटरी जो पास ऑन होता था फ्रॉम वन राजा टू द अदर जनरेशन, वो बहुत बाद में आया था. वो ऋग्वेद के टाइम पे ऐसा नहीं था. इसके अलावा टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब जन कॉमन पीपल एंड द कम्युनिटी. One word was Jan. Jan is still used today in many other languages. The other word is Vaishya. Vaishya comes from Vish. People who compose the hymns, वो अपने आप को आर्या बोलते थे कि हम आर्य हैं और आर्यास. आर्य basically is a word that is used to describe people of the higher order, जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अच्छे घराने के, अच्छे बैकग्राउंड के हैं, वी हैव अ हायर ऑर्डर, हायर प्लेस इन द सोसाइटी. वो अपने आप को आर्य बोलते थे. और वो अपने जो ओपोनेंट्स होते थे, जो उनको पसंद नहीं थे, उनको बोलते थे दस्युज और दास. दास और दस्यु वर द ओपोनेंट्स ऑफ द आर्यस. दे वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस. दास और दस्यु सैक्रिफाइसेस नहीं परफॉर्म करते. उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग थी. बाद में दास वर्ड को एज अ स्लेव यूज किया गया. एज यू नो, दास मीन्स स्लेव और दास मीन्स समवन हु वर्क्स फॉर यू, जो आपके लिए काम करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द बुक्स, और जो हमें चीजें पता चलती हैं वो है बरियल से. लोगों को कैसे दफनाया जाता था. A lot of things have been found from the graves. जो दफनाया जाता था, किस डायरेक्शन में उन्हें दफनाया जाता था. ग्रेव से कई सारे टाइप की चीजें भी मिली हैं. स्टार्टिंग विद द मेगालिथ्स. अब मेगालिथ्स क्या है? मेगा मीन्स बड़ा, लिथ मीन्स स्टोन. तो बहुत बड़े बड़े स्टोन्स मिले हैं. कैसे? अगर कोई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ग्रेव है, कब्र है, उसके अगल बगल में इस टाइप से बहुत बड़े बड़े स्टोन्स मिले. आई विल आल्सो शो यू अ पिक्चर अभी थोड़ी देर में, सो यू विल गेट एन आइडिया. दीज आर कॉल्ड मेगालिथ्स. मेगालिथ्स को अरेंज किया जाता था टू मार्क ये बरियल साइट है, ताकि आप पहचान जाओ कि हाँ ये बरियल साइट है, अगर दूर से भी आप देख लो. अब ये मेगालिथ्स कई जगह पे मिले हैं. दीज आर फाउंड इन डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड इन कश्मीर ऑल्सो. सो बहुत एरियाज में इंडिया में मेगालिथ्स मिले. मेगालिथ्स बेसिकली बड़े बड़े पत्थर ऐसे सेट होते हैं जो लगाए जाते हैं, बीच में बेसिकली उनकी ग्रेव होती है. दीज बरियल, जितनी भी ग्रेव थी, सबके कुछ कॉमन फीचर्स थे. कैसे? द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर आ जाएगा यहाँ पे. जो बरियल्स होते थे वहाँ पे लोगों के साथ, डेड बॉडीज के साथ पॉट्स, मतलब कि जो पॉटरी से जो बर्तन छोटे मोटे बनाए जाते थे, रंग बिरंगे, वेरी अट्रैक्टिव, दे वर प्लेस्ड, उनके साथ वो रखे जाते थे. ब्लैक एंड रेड कलर के होते थे, तो ब्लैक एंड रेड वेयर उनके बरियल के साथ रखा जाता था. कुछ में टूल्स और वेपन्स भी होते थे. हॉर्सेस भी देखे जाते थे. कई में ऑर्नामेंट्स गोल्ड थे. इफ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में आई हैड डिस्कस विद यू कि ये मानना था कि वंस अ पर्सन डाइज तो उसका रीबर्थ होगा. रीबर्थ कैसे होगा? जब वो मर जाएंगे उनको हम दफना देंगे ग्रेव में, उसके बाद उनकी आत्मा जाएगी ऊपर दूसरे जन्म में, दे विल गो टू हेवन और अदर प्लेसेस. तो यहाँ से हेवन जाने के लिए ऑब्वियसली दे वुड, उनकी जर्नी लंबी होगी तो भाई भूख लगेगी रास्ते में. सो मेनी ऑफ देम वर गिवन पॉट्स, उसमें खाना होता था. हेवन जाएंगे तो भाई सज धज के जाना चाहिए, सो दे वर ऑल्सो गिवन गोल्ड, सिल्वर. कई बार हॉर्स को दफनाए थे साथ में. क्यों भाई? जाएंगे हेवन तो पैदल तो नहीं जाएंगे ना, सो दे वुड नीड समथिंग. सो अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ पीसेस हैव बीन फाउंड फ्रॉम द ग्रेव्स. कभी कभी इन मेगालिथ्स में एक से ज्यादा स्केलेटन भी होते थे. ऐसा माना गया है मे बी होता होगा कि एक ही जगह पे फैमिली के और लोगों को भी दफनाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हुई, उनकी ग्रेव बना दी और पत्थर लगा दिए अगल बगल में ताकि पहचान जाए ये हमारी जगह है. नेक्स्ट कुछ सालों बाद व्हेन समवन एल्स डाइज इन द फैमिली, उनको भी वहीं पर रखा जाएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ. सो मोर देन वन स्केलेटन्स वर फाउंड. हो सकता है वो मेनली फैमिली वाइज बेसिकली डिवीजन होता हो. द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड were later brought into the graves through the potholes. जो potholes से जो मर जाते थे उनकी bodies लेकर के आई जाती थी. Stone, circular, boulder surface में लगाए जाते थे तो दिखाने के लिए, to make sure people can identify कि अच्छा यहाँ पे burial site था. As I said, I'll show you a photo. This is a photo. ये आप बड़े बड़े for example देख सकते हो पत्थर है. These were the megaliths that have been introduced और यहाँ पे एक grave है बीच में. So grave basically उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे, megaliths, to show from a distance कि अच्छा यहाँ पे burial site है, so people can identify. अब इन burial sites में से भी one of the most interesting burial site was in a place called नामगांव, present day महाराष्ट्र.
ये इनाम गांव कहाँ पे, आई शो यू मैप ऑल्सो अभी. इट वॉज ऑन द साइड ऑफ रिवर घोद. घोद कहाँ था, ट्रिब्यूटरी ऑफ भीम रिवर. अबाउट 3600 टू 2700 ईयर्स अगो ये साइट थी. यहाँ पे जो बरियल मिले बहुत इंटरेस्टिंग थे. ऑलमोस्ट सारे के सारे बरियल्स ऐसे थे यहाँ पे हेड वॉज टुवर्ड्स द नॉर्थ. कई बार बरियल और विद इन द हाउस, हाउस के अंदर ही बरियल होता था. कई बार वेसल्स मिलते थे जहाँ पे खाना पानी उनके साथ डेड बॉडी के साथ रखा जाता था. As I said, the belief was dead body has to travel to some other place और रास्ते में उन्हें खाना पानी सजावट के लिए ornaments, even animals, they were kept in the grave itself. एक ऐसा भी मिला, one man was found inside a clay jar. I'll show you a photo also. बड़ा सा clay jar है, उसके अंदर एक आदमी की लाश मिली. So basically उनको ऐसे crouch करके पोजीशन में उनको रखा गया था. It was in the courtyard of a 5-roomed house. एक बहुत बड़ा सा घर, उसके कोर्टयार्ड में वरांडे में ये दफनाए गए थे. इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट. इस हाउस में ग्रेनरी भी थी खुद की, तो मतलब किसी बहुत अमीर आदमी का या किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली का वो हाउस था. द बॉडी वॉज इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन, कहते हैं पालती मार के बैठ जाना उस टाइप से. अगेन जस्ट 1 or 2 slides later I will show you the photo of the burial also so that you understand कि क्या बात हो रही है. A lot of occupations were also seen in Inam Gaon. People had different occupations. Archaeologists को क्या क्या मिला, अलग अलग टाइप के सीड्स मिले. वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, इन सब के सीड्स मिले. कई एनिमल्स के बोन्स भी मिले, कट मार्क्स भी मिले, मतलब कि उन्हें फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता था. These included cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse. Here बहुत अलग अलग टाइप के, as you can see, animals were found. The bones were found in Inam Gaon. Means they were used for eating purposes. This is a map, and this is the Inam Gaon site. So Inam Gaon, as you can see, is a site not very far from Mumbai. It is in today's Maharashtra. It was very important for its special kind of burials. Again, it's a map of very important places that you can see. If you want, you can take a screenshot. Inam Gaon also was famous because it was the southernmost site of the Indus Valley civilization. Beyond this, no site was found in the Indus Valley civilization. This is an example of that burial. So ये पूरा clay pot है, as you can see, it's made up of clay. इसके अंदर a burial was made. एक आदमी को बिठाया गया था इसके अंदर in a cross-legged position. This was inside his house. अपने घर के ही वरांडे में एक ग्रेव थी और यहाँ पे इनको बिठाया गया था. A huge house. It had a greenery also. Just goes to show कि इनाम गांव में burials were of very unique kinds. Now, about 3000 years ago, करीब 3000 years पहले, there came to be emergence of certain rajas. अब राजा बनना शुरू हो गए, रिपब्लिक आना शुरू हो गई, कुछ लोग अब रूलर्स बनना शुरू हो गए थे. कैसे? The people who were strong, उन्होंने बड़े बड़े रिचुअल कराना शुरू कर दिए टू प्रूव कि भाई हम लोग बहुत पावरफुल हैं. फॉर एग्जाम्पल अश्वमेध सैक्रिफाइस होना शुरू हो गया. अश्वमेध क्या था? बहुत सिंपल सा था. जैसे मैं एक राजा हूँ, मैं अपना घोड़ा छोड़ दूंगा और घोड़ा जहाँ जाना चाहता है जाएगा. फॉर एग्जाम्पल घोड़ा किसी और राजा की टेरिटरी में एंटर हो जाएगा तो द सेकेंड राजा हैज एन ऑप्शन. अगर तो वो घोड़े को जाने देंगे आगे तो मतलब सेकेंड राजा ने हार मान ली है, ये मान लिया कि जिसका घोड़ा है वो स्ट्रॉन्गर राजा है, मैं उनसे नहीं लड़ सकता. On the other hand, if the second Raja stops the horse, तो दूसरे राजा ने घोड़े को रोक लिया है, means the second Raja has to fight the first Raja, the first person whose horse is it. So ये घोड़ा जहाँ जहाँ तक चलता रहेगा, all that territory will be considered as the territory of the king whose horse it was. If the king stopped the horse, they would have to fight. If they allowed the horse to pass, then they have accepted that yes, Raja or the king is stronger than them. अब जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ राजा हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, these smaller kings were invited by the stronger raja for his ceremonies, for his sacrifices, for all the rituals. अब rituals कौन करते थे? The rituals were done by specially trained priests. These priests in return were given a lot of gifts by Raja, and Raja the king was the central figure of all these rituals. इन सब rituals में राजा पे ही सब फोकस, सब लाइमलाइट होती थी. He had a very special seat, अलग से सीट होती थी. कई बार उनका पूरा बेसिकली राजशाही वाला गद्दा होता था. टाइगर स्किन होती थी, as you see in the movies in Mahabharata and Ramayana that have been made. So they have a very special kind of a throne. जो और राजा थे छोटे मोटे who had let the horse pass, they were only spectators. They were invited कि देखो भैया हम बड़े राजा हैं and how we are doing our ceremony.
Priest performed the rituals which included sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, जो आम लोग थे और जो बाकी लोग थे राजा के लिए गिफ्ट लेकर के आते थे. कुछ लोग ऐसे थे which were considered as a shudras, means the lowest caste. They were not allowed to be in the ritual. उनको ritual से अलग रखा गया था. These were the four varnas as mentioned in the Rig Veda. First were the Brahmins, then the Kshatriyas, and the Vaishya, then the Shudras. Women also were clubbed with the Shudras in the fourth category. They were also not allowed to attain or to attend most of the rituals and the ceremonies organized by the king. Now there were the Janpads also that were coming up. Janpad means a territory, a territory with a specific border, जहाँ पे एक king होगा जो कि उसके territory के ऊपर rule करेगा. Now as per the archaeologists कई सारे हमें अलग जनपद मिले हैं. पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर very famous for in महाभारत, मेरठ के पास जो की है. Then अतरंजी खेरा which is near एटा यूपी में जो है. लोग यहाँ पे हट्स में रहते थे. They had a lot of animals with them. They also grew a lot of other kind of crops with them. इनकी अपनी खुद की पॉटरी होती थी. अर्दन पॉट जिन्हें कहते हैं. They were usually grey in color और कुछ रेड भी होते थे. इसके अलावा one special type of pottery was found called the painted greyware. As the name says, ये grey type के pots थे. They had design of their own, usually simple line और geometric patterns होते थे इस pottery के ऊपर. अब ये जब जनपद बड़े होते गए, कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना एरिया बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया. These were now called the महाजनपदास. Now महाजनपद वो होते थे जिनकी एक कैपिटल सिटी होती थी, उसका पूरा फोर्टिफाई किया जाता था, अगल बगल में पूरी दीवारें लगाई जाती थी. They were big forts which were built so that people could not attack, ताकि लोग अटैक ना कर सके उस पर, क्योंकि kings now needed protection. महाजनपद came about 2500 years ago. इसके अलावा नए राजा आ गए जिनको बड़ी बड़ी आर्मी चाहिए थी. क्यों बड़ी आर्मी चाहिए थी? बिकॉज अब कैपिटल बन गई थी, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. आपने वॉल्स भी बना ली है, सो आपको परमानेंट आर्मी रखनी पड़ेगी. परमानेंट आर्मी मतलब परमानेंट सैलरी देनी पड़ेगी. सैलरी कैसे लेकर के आओगे? सैलरी लेकर के आने के लिए आपको अपनी करेंसी देनी पड़ेगी. सो नाउ पेमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड. कॉइन्स कई लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स. पंच मार्क्ड कॉइन मतलब फॉर एग्जांपल एक मेटल का सिक्का है, उस पर जोर से ऐसे पंच करोगे, आप कोई सिंबल उस पर जोर से ऐसे पुश करोगे तो वो एक उस पर सिंबल शेप बन जाएगी उसके ऊपर, जो आप कहोगे ढांचा बन गया है. दीज आर कॉल्ड पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स. सो ये इंट्रोड्यूस हो गए थे. अब इसके अलावा महाजनपद में टैक्सेस भी आ गए थे. अभी तक लोगों के ऊपर कंपलसरी टैक्सेस नहीं थे. राजा को जिसको कोई गिफ्ट देना होता दे देता था. बट नाउ बिकॉज दे हैड एन आर्मी टू मेंटेन, खर्चे ज्यादा हो गए थे, कैपिटल मेंटेन करनी थी, तो अब टैक्सेस भी लेना शुरू हो गए थे. सो बिकॉज टैक्सेस क्यों? क्योंकि उनको बड़े बड़े महल बनाने थे, बड़ी आर्मी बन चाहिए थी, उनको बड़े रिसोर्सेज चाहिए थे कि भाई प्रोटेक्शन चाहिए हमें वॉरों से. सो नाउ ओकेजनल गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, अब टैक्सेस. यूजुअली 1/6 टैक्स रखा जाता था, क्योंकि अब लोगों के पास कैश तो कम होता था, तो जो भी आप कमाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप क्रॉप कमा रहे हो, आपने क्रॉप उगाया, सो इफ यू हैड 60 kg ऑफ व्हीट, तो उसमें से 1/6 आपको राजा को देना पड़ेगा. सो 10 kg विल बी विद द राजा. इफ यू आर एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट को भी फ्री में राजा के लिए आकर के काम करना पड़ेगा. दीज वर द काइंड ऑफ टैक्सेस. This is a map that shows major Mahajanpadas of that time. There is Gandhar, there is Kuru, there is Vajji, Magad, Ang. As you can see, there is Avanti, there is Panchal, Kosal. These are some of the major Mahajanpadas. The tax was also called as bhag or share. It was usually 1/6. As I said, जो क्राफ्ट आर्टिस्ट होते थे उनके पास भी, उनको भी टैक्स देना पड़ता था. लेबर को भी कैसे? वो फ्री में राजा के लिए कुछ दिन काम करेंगे हर महीने. हर्डर्स जो गाय भैंसे चराते थे उनको भी सबको टैक्स देना पड़ता था इन टर्म्स ऑफ उनकी क्या वो काम करते थे. जो भी वो काम करते थे वो उन्हें फ्री में काम राजा के लिए करना पड़ेगा. ये सब कुछ टैक्स था. ट्रेडर्स को भी टैक्स देना पड़ता था जो खरीदते बेचते थे उन पे. तो बेसिकली अब महाजनपद में टैक्स सबके ऊपर आ गए. एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस देखने को मिले. पहली चीज क्या? अब फाइनली जो टूल्स थे, जो फावड़े वगैरह प्लगशेयर थे, वो वुड की जगह अब आयरन के बनने लगे थे. आयरन के बनने लगे मतलब नाउ इट इज मोर इजी. अब ऑब्वियसली वो टूटेंगे नहीं आराम से, तो बहुत आराम से अब वो गड्ढा खोद सकते थे. दे कुड हैव मच बेटर एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर बेटर होना शुरू हो गया. इट बिकेम मच मोर प्रोडक्टिव. काफी ज्यादा चीजें उगने लगी एज कम्पेयर टू अर्लियर. सेकेंडली, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी
मतलब कि पैडी का ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया। अभी तक क्या था कि राइस या फिर वीट उगाने के लिए आप जाकर के सीधा वहीं पे बो देते थे फील्ड्स में, कुछ उगता था कुछ नहीं उगता था। नहीं उगता था क्यों? एनिमल्स आके खा लेते थे। अब क्या हुआ? अब जैसे अभी होता है, आप अपने ही छोटे से एक जगह पे पहले राइस और वीट उगाओगे, उसका थोड़ा छोटा सा सैपलिंग आ जाएगा, फिर वो सैपलिंग जाकर के आप फील्ड में लगाओगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग पैडी। केवल आप बीज नहीं लगा दोगे फील्ड में, आप पहले बीज से छोटा सा सैपलिंग खुद उगाओगे, वीट का या राइस का, वो सैपलिंग आकर के आप वहां पे लगाओगे। तो सैपलिंग ग्रोन होती थी और फिर वहां से फील्ड्स में ट्रांसप्लांट की जाती थी। इससे प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया, बहुत प्लांट सर्वाइव करने लगे। यूजुअली स्लेव मैन, दास जिन्हें बोलते थे, विमेन, लैंडलेस लेबरर जिनको कर्माकर बोलते थे, ये लोग होते थे विच वर यूज्ड टू वर्क ऑन द फील्ड। इनको फील्ड्स में काम कराया जाता था। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द महाजनपद, महाजनपद की जब बात करते हो, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वाज मगध। मगध के बारे में हम बहुत बार पढ़ेंगे आगे जाकर के। मगध सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद बना था, सबसे पावरफुल, बहुत रीजंस की वजह से। फर्स्ट, इट हैड ग्रेट रिवर्स, गंगा और सोन वहां से फ्लो होती थी, तो उससे उनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होती थी, पानी में कोई कमी नहीं थी, और लैंड बहुत फर्टाइल था। प्लस मगध के काफी सारे एरियाज में जंगल थे, एलिफेंट उनके पास थे, तो आर्मी उनकी बहुत स्ट्रांग थी। जंगल थे तो उनको लकड़ी मिल जाती थी चैरियट्स बनाने के लिए, हॉर्स हाउस बनाने के लिए अपनी। आयरन और की माइंस भी थी उस रीजन में, इससे टूल्स वेपन्स बन जाते थे। इन ऑल मगध के पास ऐसा सब कुछ था जो उनको चाहिए था टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रांग एम्पायर। इसके अलावा दे हैड ग्रेट एंड वेरी पावरफुल रूलर्स, स्टार्टिंग विद बिंबिसार एंड अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार ने काफी सारा एरिया अपना कॉन्कर कर लिया। इसके बाद महापद्मा नंदा आते हैं वहां पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर बने। इनफैक्ट उसके बाद जो मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हुई वो भी वहीं से ही हुई। महापद्मानंदा ने मगध का कंट्रोल और बढ़ाया। ही कंट्रोल्ड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। राजगृह जो कि आज राजगीर है बिहार में, वो कैपिटल था मगध की। उसके बाद कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया गया, विच इज टुडेस पटना। फेमस ही अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे मैसेडोनिया से, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैप्चर करके। उनका लास्ट जो एम था वो था मगध पे कैप्चर करना, बट मगध आने से पहले ही वो वापस चले गए। क्यों? उनकी आर्मी ने जो ब्यास रिवर था उसके बैंक्स को नहीं आगे क्रॉस किया। इसकी अलग अलग स्टोरी दी जाती है क्यों। एक स्टोरी दी जाती है वो घर से बहुत सालों तक दूर थे, बीमार पड़ने लगे थे, उनकी आर्मी ने वापस आने को कहा। सेकेंडली स्टोरी दी जाती है कि बहुत उस टाइम पे कहा गया उनसे, लोगों ने बताया कि भाई जो मगध की आर्मी है नंदास की बहुत स्ट्रांग है, आपको हरा देंगे, उनके बहुत सारे सोल्जर्स हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एलिफेंट्स, चैरियट्स। सो Alexander's army did not cross Beas और वो वहां से वापस चले गए। That is how Magad became very powerful. This is a map. This basically is the area of Magad. As you can see, part of present day Bihar, Bengal, Odisha, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, Jharkhand for a bit. Another important kingdom was Vajji. Now Vajji भी important था. Why it is important for you to understand? Vajji थोड़ा अलग टाइप से रूल हुआ करता था। वज्जी वॉज अ महाजनपद जिसकी कैपिटल थी वैशाली बिहार में। इनका जो गवर्नमेंट था वो अलग था, विच वॉज कॉल्ड संघ। मतलब कोई एक रूलर नहीं था, वहां बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स थे। वो सब एक एक राजा बोलते थे अपने आप को। वो सारे रिचुअल्स खुद परफॉर्म करते थे इकट्ठे, और खुद डिबेट डिस्कशन करके ही सारे के सारे डिसीजन लिए जाते थे। किसी पे अटैक करना है तो भी वो मिलकर डिसीजन लेते थे। लेकिन इन डिसीजंस में अगेन विमेन, दास, कमाकर जिनको स्लेव माना जाता था, उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। बुद्धा, महावीर दोनों के दोनों ये गण या संघ टाइप की जो गवर्नमेंट है यहीं से ही इमर्ज हुए थे। ये भी कई सारे डिस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं संघ की गवर्नमेंट के कई सारे बुद्धिस्ट बुक्स पे कि संघ कैसे काम किया करते थे, कैसे अलग राजा को पावर बांटी गई थी। अबाउट 1500 ईयर्स अगो, 1500 ईयर्स करीब पहले, संघ को खत्म कर दिया गया जब गुप्ता रूलर्स का इमर्जेंस हुआ और सारे संघ या गन्स को हरा दिया गया। ये एक अगेन दिस इज द मैप टू शो जो मेजरली उस टाइम के महाजनपद थे। नाउ एज आई सेड आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली, टेक 10 to 15 seconds of your time and try to answer. The first statement is all suktas of the Rig Veda were composed by men. This is incorrect. We had discussed most were composed by men
but some were composed by women also. Now if statement was in is incorrect, ये incorrect है तो अपने आप बस आपको elimination use करना है and you can see which is the answer. यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी one है, ये भी नहीं हो सकता, all भी नहीं हो सकता, so the answer is B. The other two statements are correct. Moving on, second question, what did the Aryas call their opponent? Very easy, they called them the Dasyur or the Das. So C again is the correct answer. Thank you so much for watching this video. Do check out EduRev Infinity, which is an excellent platform prepared by UPSC experts. It has more than 10,000 questions for your practice and excellent notes as per the UPSC level. Thank you.